Hello everyone, I am CA Prerna Birla, a practicing chartered accountant. So first of all, I would really like to thank CSNSR for giving me this opportunity to present before you a small topic and share my views on it. So the topic which I have chosen today is QRMP scheme, which recently was introduced by CBIC. So, QRMP scheme, as the name suggests, it's a quarterly return filing and monthly payment of taxes scheme. So, it was introduced by CBIC for small taxpayers in 42nd council meeting, and this scheme was introduced to reduce the compliance burden for especially the small taxpayers. It allow is scheme Through this scheme, all the small taxpayers whose turnover is less than 5 crores will be able to file or are able to file GSTR 3B and GSTR 1 quarterly. But as the name suggests, the payment for taxes remains monthly only. So firstly, we had quarterly filing of GSTR 1 only, and that was for taxpayers whose turnover was less than 1.5 crores. So let's see first how the migration was done into QRMP scheme of the existing taxpayers. So the quarterly filers of GSTR 1, that is the taxpayers who were having turnover up to 1.5 crores, but they had chosen to file the GSTR 1 quarterly, were automatically shifted to QRMP scheme. And the taxpayers जिन्होंने मंथली सेलेक्ट किया हुआ था डिस्पाइट देयर टर्नओवर बीइंग 1.5 करोड़, उन्हें मंथली रजाइम में ही रहने दिया गया था. एंड ऑल्सो इसके बाद जो हमारे 1.5 करोड़ से 5 करोड़ वाले टैक्स पेयर्स थे, उन्हें ऑटोमेटिकली क्यूआरएमपी स्कीम में शिफ्ट कर दिया गया था. बट इसकी एक कंडीशन थी, लाइक दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जनवरी 2021. So from like in December, we were to choose whether we'll be opting for it or not. The people who had filed the October 2020 return, जो भी रिटर्न थी which was to be filed by December, जो वो फाइल कर चुके थे, सिर्फ वो क्यूआरएमपी स्कीम के लिए ऑप्ट इन कर सकते थे. So this is how the existing taxpayers were migrated in QRMP scheme from January 2021 when this scheme came into existence. So इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन एलिजिबल था इस स्कीम के लिए, मतलब कौन इस स्कीम को ऑप्ट इन कर सकता था एंड कौन ऑप्ट इन ही नहीं कर सकता था. तो पहली हमारी कंडीशन आ जाती है, उसकी टैक्सेबल टर्नओवर 5 करोड़ होनी चाहिए इन प्रीसीडिंग ईयर एंड द करंट फाइनेंशियल ईयर. और दूसरा, दिस टैक्सपेयर शुड बी लायबल फॉर फाइलिंग GSTR 3B रिटर्न. सो दिस इज टू नोट कि अगर कोई कॉम्पोजिशन में है या कोई ISD टैक्स पेयर है या कोई TCS TDS की रिटर्न भर रहा है, those people were not eligible for opting in for QRMP scheme. और थर्ड कंडीशन विच आई डिस्कस कि सारी रिटर्न्स जो भी जिस डेट से हम QRMP लेना चाह रहे हैं या जिस क्वार्टर के लिए लेना चाहिए, उससे पहले जो भी रिटर्न्स ड्यू हैं वो हमारी फाइल्ड होनी चाहिए. और फोर्थली ये आ जाता है कि अगर हमने QRMP स्कीम में ले भी एलिजिबल थे हम एक टाइम पे एंड वी हैव ऑप्टेड फॉर QRMP स्कीम, but the moment our turnover is above 5 crores in any quarter, we become ineligible for the QRMP scheme in next quarter. Or agar the fifth eligibility would be that if anybody is opting for new GST registration या फिर कोई कॉम्पोजिशन से रेगुलर टैक्स पेइंग रेजिम में आना चाहिए चाहता है, उसको QRMP स्कीम को ऑप्ट इन करने का they were given an option for opting in the QRMP scheme. So this is like, these are the 5 conditions or like 5 things that we have to keep in mind while seeing the eligibility for opting in the QRMP scheme.
तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हाउ टू ऑप्ट इन फॉर द QRMP स्कीम. लाइक वी हैव सीन द एलिजिबिलिटी कि हम इस स्कीम को ऑप्ट इन कर सकते हैं कि नहीं, बट कैसे ऑप्ट इन करना है, बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा प्रोसीजर इसके लिए दिया गया है GST की तरफ से. सो आफ्टर वी लॉग इन टू आवर GST पोर्टल, तो gst.gov.in पे जब हमने लॉग इन कर लिया अपने यूजर आईडी पासवर्ड के साथ, देन वी गो अंडर द सर्विसेज टैब. उसके बाद रिटर्न्स में जाकर ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न ऑप्शन आ जाता है हमारे पास. उससे हम QRMP स्कीम में ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं. एंड दिस ऑप्शन ये हमारे पास थ्रू आउट द ईयर रहता है. अगर हमने किसी पहले हम मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, देन वी वांट टू ऑप्ट इन फॉर द क्वार्टरली रिटर्न, तो बाय गोइंग फॉर दिस ऑप्शन वी कैन एक्सरसाइज दिस QRMP स्कीम ऑप्शन थ्रू आउट द ईयर. और ये इसकी विंडो क्या है? इसकी विंडो है कि जिस क्वार्टर में हमने QRMP स्कीम लेना है उससे प्रीवियस क्वार्टर के सेकेंड मंथ के फर्स्ट से जिस क्वार्टर में हमने ऑप्ट इन करना है उसके फर्स्ट मंथ के लास्ट तक. जैसे हमने जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में करना है, तो 1 नवंबर से 31 जैन तक हम इस स्कीम को ऑप्ट इन कर सकते हैं अपने जैन टू मार्च के क्वार्टर के लिए. एक और बात which is to be noted in for opting in for this scheme, this scheme is eligible, or I will say कि this scheme can be availed GSTN wise and not PAN wise. So अगर हमारे registrations हैं around 28, 26 all over India, तो इट वुडंट डिपेंड कि हमारी ऑल ओवर इंडिया की टोटल टर्नओवर कितनी है. इट विल ओनली डिपेंड कि हमारी एक पर्टिकुलर GSTN की कितनी है. तो फॉर फ्यू GSTNs वेयर हमारी टर्नओवर इज लेस देन 5 crores, we can opt in for QRMP scheme, and though where it is above 5 crores we can definitely not go for the QRMP scheme. और एक बारी हमने एक साल के लिए एक क्वार्टर, जो फर्स्ट क्वार्टर के लिए QRMP स्कीम को ऑप्ट इन कर लिया, तो दैट विल बी वैलिड थ्रू आउट दी all the quarters for the in that year. So these are the dates that are there for through which we can opt in for the QRMP scheme. तो पहला क्वार्टर जो हमारा अप्रैल से जून तक आता है, तो उसके लिए 1 February to 30th April, दैट इज पिछले क्वार्टर के सेकेंड मंथ का फर्स्ट डेट विच इज 1 February से जो हमने जिस क्वार्टर में ऑप्ट इन करना है उसके फर्स्ट मंथ के लास्ट तक, दैट इज 30th April तक हम इस स्कीम को ऑप्ट इन कर सकते हैं. ऐसे ही जो हमारा जुलाई टू सितंबर का क्वार्टर है उसकी डेट है 1 May से 31 जुलाई, और जो हमारा अक्टूबर टू दिसंबर का क्वार्टर है उसकी डेट है 1 August से 31 October QRMP स्कीम में जाने के लिए. और जो हमारा क्वार्टर 4 है, जो अभी हमने बात की जनवरी टू मार्च, उसका 1 November से 31 January तक विंडो खुला रहता है हमारी QRMP स्कीम में जाने के लिए. और अगर हमें इस पे और भी if you want to see GST portal has provided a proper manual how we can switch to this. This is how we can go for this is the manual that they have presented us, like services, returns, and then opt in for the quarterly returns, and then we can select the financial year, and then there are options for each quarter that what we want to do for each quarter, and then there are FAQs and advisory that were issued by the GST portal. So this is a link where we can find each and every information about how we can opt in or what is the procedure for opting in for the QRMP scheme. अब हम बात कर लेते हैं, ये हो गया कि हमने हमारी एलिजिबिलिटी क्या थी, हम कैसे ऑप्ट इन कर सकते हैं, या हम QRMP में कैसे जा सकते हैं. अब वंस वी हैव टेकन द QRMP स्कीम, तो हम देख लेते हैं हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें फाइल करनी है, या रिटर्न्स क्या क्या फाइल करनी है, कैसे कैसे फाइल करनी है, क्या मेथड रहेगा हमारी पेमेंट ऑफ टैक्सेस का जो हमें मंथली करनी है, राइट. तो एक चीज जो इसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई वो है IFF, विच इज इंफॉर्मेशन फर्निशिंग फैसिलिटी. तो IFF वाज इंट्रोड्यूस्ड बेसिकली एक स्मूथ फ्लो ऑफ ITC क्लेम के लिए. So IFF is a information facility that was facilitated for QRMP scheme taxpayers, where in first month of the quarter and second month of the quarter we can
file our invoices, B2B invoices, only B2B invoices or CDNR for those particular months. For like, if we have opted for Jan to March as QRMP, in January and February we can file IFF, and उसकी डेट क्या रहेगी, जैसे हमारी जैन की है तो इट इज टू बी फाइल्ड इन द फेब फ्रॉम 1st to 13th फेब, राइट. और एक और कंडीशन जो हमें यहाँ पे मिली वो ये थी कि फर्स्ट और सेकंड मंथ के इनवॉइसेस का टोटल 50 लाख हो सकता है पर मंथ का. क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 50 लाख पर मंथ हम फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर में अपलोड कर सकते हैं. तो IFF हमारी एक आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल है विच इज टू बी अपलोडेड 13th of the month. और ये हमारी जो IFF डिटेल्स हैं ये हमारे रिसिपिएंट के 2A और 2B में रिफ्लेक्ट करेगी. तो like now as per 36(4) rule we have to match our credit with 2A and 2B. तो ये एक स्मूथ फ्लो ऑफ ITC क्लेम के लिए IFF को इंट्रोड्यूस किया गया था. तो are filing the GSTR1. In that GSTR1, we don't need to file the invoices that we have already filed in the IFF. So those invoices are already like filed, like we file in GSTR1, it has been filed in IFF. तो GSTR1 में B2B और CDNR जो हम previous months में IFF में फाइल कर चुके हैं वो हमें दोबारा से फाइल करने की जरूरत नहीं है. And last thing is कि it is an IFF is totally an optional facility. और अगर हम इसको नहीं फाइल कर रहे तो हमारी कोई लेट फीस या पेनल्टी हमें नहीं लगेगी. इट इज एन ऑप्शनल फैसिलिटी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ITC. तो ये टोटली कन्वीनियंट और ऑप्शनल है कि हमें IFF फाइल करना है कि नहीं करना है. तो एक समरी देख लेते हैं हम IFF की. तो IFF में पहले तो हमने ऑप्ट इन कर लिया क्वार्टरली GSTR1 के लिए. तो पहले मंथ और सेकेंड मंथ में हम अपने B2B इनवॉइसेस फाइल कर देंगे फ्रॉम 1st to 13th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ. थर्ड मंथ में हम B2B इनवॉइसेस के साथ अपना B2C HSN एंड एवरीथिंग विच इज एप्लीकेबल टू अस वो हम GSTR1 पूरी फाइल करेंगे एक्सेप्ट दोज बिल्स जो हम IFF में चढ़ा चुके हैं. तो ये सब कुछ अपलोड करके हमारी जो टोटल क्वार्टर की रिटर्न है जो 2A में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए या 6A में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए या 4A में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए वो हमारी रिफ्लेक्ट कर जाएगी. तो ITC मैकेनिज्म में देयर इज नो हिच इन दिस. तो दिस इज ऑल अबाउट IFF कि कैसे IFF में हमारे इनवॉइसेस का फ्लो जा रहा है. ठीक है जी. सो नेक्स्ट अब हमने एक पार्ट देख लिया कि हमारी रिटर्न फाइलिंग आउटवर्ड सप्लाईज के लिए क्या रहेगा. अब हम देखते हैं कि हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स जो कि मंथली होना चाहिए उसका क्या रहेगा. तो पेमेंट ऑफ टैक्स हमारा PMT 06 से हो जाएगा. तो जो पहले 2 मंथ्स हैं उसमें हम PMT 06 यूज करके अपनी मंथली पेमेंट करेंगे और उसकी ड्यू डेट हमारी रहेगी 25th डे ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ. जैसे 1st to 13th हमें IFF फाइल करना है वैसे 25th डे तक हमें PMT 06 फाइल करना है जो हमारे कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट कर देगी. तो ये जो अमाउंट डिपॉजिट होगा कैश लेजर में ये हम यूज कर सकते हैं जब हम अपनी क्वार्टरली 3B भरेंगे. उसकी लाइबिलिटी को ऑफसेट करने के लिए वी कैन यूज दिस money that we have deposited through GST PMT 06. और अब हमें CBIC ने मेथड्स भी प्रिस्क्राइब कर दिए कि हम मंथली पेमेंट के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं. एक हमारे पास मेथड है फिक्स्ड सम मेथड. इसमें क्या होएगा कि आपने जो पिछले क्वार्टर में सपोज पे किया उसका 30 नेट कैश पे किया मतलब कैश लाइबिलिटी क्रेडिट तो जो पे किया सो किया जो हमने कैश में पे किया नेट कैश पेमेंट जो हमने की उसका 35% हम फर्स्ट मंथ में पे कर देंगे और उतना ही हम सेकंड मंथ में पे कर देंगे अगर हम पहले क्वार्टरली फाइलिंग करते थे या हमने प्रीवियस क्वार्टर में जो भी पे किया है. लेकिन अगर हम मंथली रिटर्न जो हमारी फाइल हो रही थी तो हमने पिछले मंथ में जो भी नेट कैश लाइबिलिटी हमारी आई है वो हम पे कर देंगे.
ये होता है फिक्स सम मेथड। एक हमें दिया गया सेल्फ असेसमेंट मेथड कि हम खुद असेस कर लें कि हमारी आउटपुट लाइबिलिटी कितनी है, इनपुट लाइबिलिटी कितनी है, और हमारी नेट कैश लाइबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ कितनी बनेगी, तो उस हिसाब से हम PMT-06 फाइल कर देंगे। जो हमारा फिक्स सम मेथड प्रिस्क्राइब किया गया है, इसमें हमें इंटरेस्ट की इम्प्लीकेशन नहीं आएगी, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वार्टर को देख के या प्रीवियस मंथ को देख के अपनी फाइलिंग करी है। तो दिस इज अ मेथड पर्टिकुलरली प्रिस्क्राइब्ड बाय CBIC विच वी ऑप्टेड, तो इसमें हमें इंटरेस्ट इम्प्लीकेशन नहीं आएगा। लेकिन अगर हमें सेल्फ असेसमेंट में देर इज सम प्रॉब्लम इन व्हाट वी हैव डिपॉजिटेड, देन इंटरेस्ट इम्प्लीकेशन आ सकता है। तो दिस इज नॉट अ रिटर्न, तो इसमें कोई हमारे लेट फीस का इम्प्लीकेशन नहीं है। दिस इज जस्ट पेमेंट जो विच गवर्नमेंट वांट्स अस टू पे। एक तरह से ठीक भी है, वी आर नॉट गेटिंग अ लाइबिलिटी फॉर द होल क्वार्टर दैट वी हैव टू पे, थोड़ा थोड़ा करके वी हैव टू डिपॉजिट, बट देर इज नो फिक्स थिंग कि हमें अपनी सेल परचेज पूरी फाइनल ही करनी है एंड एवरीथिंग। वी कैन यूज फिक्स सम मेथड कि हम एक बार अपने क्वार्टर एंड पे ही अपनी रिटर्न फाइल कर दें। सो दिस इज हाउ, और दीज आर द ऑप्शंस दैट वर गिवन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब हम देख लेते हैं हमारी क्वार्टरली ड्यू डेट्स क्या है। अब जैसे ये रिटर्न हमारी क्वार्टरली जाएगी, तो GSTR 1 की डेट पहले जो 11th होती थी अब 13th हो गई है ऑफ द सब्सिक्वेंट क्वार्टर, और GSTR 3B की हमारी क्वार्टरली डेट वही है जो हमारे स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए थी, 22nd, और कुछ स्टेट्स के लिए जो हमारी डिवाइड हो रखी है, तो 24th फॉर अदर स्टेट्स। तो 20th हमारी मंथली फाइलिंग के लिए रहेगी, और 22nd और 24th हमारे ये क्वार्टरली फाइलिंग के लिए according to the states हो जाएगी। So these are the due dates for quarterly filing of return. So like this is all about what is involved in QRMP scheme, कि QRMP scheme में हमारे क्या क्या है, कैसे कैसे पेमेंट होनी है, GSTR 1 कैसे फाइल कब फाइल होएगी, IFF का क्या रोल रहा है, 3B हमारी क्वार्टरली कब जाएगी, और पेमेंट ऑफ टैक्सेस कैसे होगा, और हम कैसे ऑप्ट इन कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट मतलब व्हाट एंड हाउ QRMP स्कीम में जाने पे हमें क्या करना है। तो हम एक नटशेल देख लेते हैं QRMP स्कीम का। तो एक नटशेल में हम देखें तो स्मॉल टैक्स पेयर्स जिनकी 5 करोड़ से नीचे टर्नओवर है वो QRMP स्कीम ले सकते हैं, जिसमें 103B क्वार्टरली जाएगी। एक सिंपल चलान से मंथली पेमेंट हो जाएगी, PMT-06 फाइल करना होगा। उसके 2 मेथड्स है, सेल्फ असेसमेंट और फिक्स सम मेथड। कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर हम फिक्स्ड सम मेथड ले रहे हैं, जिसमें 35% ऑफ द चलान ऑफ द सक्सीडिंग मंथ पे करना है, और ये 25th को पे करना है ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। कोई पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं अगर आपने पिछले मंथ में कैश लाइबिलिटी नहीं पे करी, आपने सारा पैसा ही अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे किया, तो इस मंथ में भी आपको कोई कैश डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन देयर इज IFF फैसिलिटी, जिसमें हमें B2B इनवॉइसेस फाइल करने हैं ताकि स्मूथ फ्लो ऑफ पासिंग ऑफ ITC रहे फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ में। नहीं तो क्या हो रहा था, अगर हम GSTR 1 क्वार्टरली फाइल हो रही थी तो वी हैड टू वेट कि वो द टैक्स पेयर हु हैज ऑप्टेड फॉर GSTR 1 क्वार्टरली वो फाइल करे, देन वी वर एबल टू क्लेम द ITC। तो उसमें देयर वाज अ हिच इन द ITC क्लेम फ्लो, तो इसके लिए IFF फैसिलिटी आ गई, और that have eased out things for ITC claim, right? और एक और बात कि ये हमारी जो स्कीम है इट इज GSTIN वाइज एंड नॉट पैन वाइज। तो हर GSTIN के बेस पे हम इस स्कीम को ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो हम जो भी IFF में फाइल करेंगे या क्वार्टरली GSTR 1 में फाइल करेंगे वो हमारे 2A 2B पे आता रहेगा। तो एक स्मूथ फ्लो ऑफ ITC हमारा रहेगा QRMP स्कीम से। तो हमने इतना कुछ देख लिया QRMP स्कीम का। लेट्स सी हमें बेनिफिट्स क्या क्या हुए हैं QRMP स्कीम से। तो पहला बेनिफिट तो डेफिनेटली ये है कि हमारा कंप्लायंस बर्डन बहुत ही कम हो गया है। टैक्स पेयर को सिर्फ 4 रिटर्नें फाइल करनी है 3B की, और जो वो 12 करता था, और 4 रिटर्नें फाइल करनी है GSTR 1 की जो मंथली फाइलर्स 12 कर रहे थे, और IFF आ गई है तो ITC क्लेम का भी कोई देयर इज नो हिच। और जो हमारी चलान पेमेंट है वो भी फिक्स सम मेथड या सेल्फ असेसमेंट मेथड में हम फर्स्ट 2 मंथ्स में कर देंगे, तो देयर इज
बहुत ही कन्वीनियंटली हमारा मंथली टैक्स भी पे होता रहेगा, बट देयर इज नो लाइक कंपल्शन फॉर दिस। और इजीली हम ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं, ऑप्शनल फैसिलिटी है आईएफएफ की। तो ये भी जरूरी नहीं है कि हमें आईएफएफ फाइल करना ही करना है। तो स्पेशली अगर हम देखें तो जो टैक्स पेयर्स हमारे, लाइक इफ यू टॉक अबाउट सीए इन प्रैक्टिस, तो हमारे पास एक्सपोर्टर्स, एक कुछ टैक्स पेयर्स होते हैं जो सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, या कुछ टैक्स पेयर्स होते हैं जिनकी सिर्फ B2C होती है। जैसे नॉर्मली आप लगा लो किराना स्टोर है, जिनकी सिर्फ B2C सप्लाईज होती हैं। तो फॉर सच टैक्स पेयर्स हमारी सिर्फ वन हमें क्वार्टरली फाइल करनी है, हम आईएफएफ फाइल करने का लाइबिलिटी भी नहीं है। तो द कंप्लायंस बर्डन हैज लिटरली रिड्यूस्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम। और बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से हमारा आईटीसी फ्लो करता है इसमें, और बहुत ही कन्वीनियंटली हम सिर्फ मतलब इट्स अ, जो हमें बर्डन मंथली होता था वो हमारा क्वार्टरली शिफ्ट हो गया है। तो it has QRMP scheme has helped to reduce the compliance burden to a very great extent. तो दिस वाज ऑल अबाउट QRMP स्कीम, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और क्या क्या इसमें हमें फाइल करना होता है, एंड व्हाट ऑल इज देयर। तो that's it for QRMP scheme. For any questions relating to this, you can contact me. This is my number. I am CA Prerna Birla. I would like to thank you all for listening to me, and thank you CA Sansar for giving me this opportunity. Thank you everyone.